All right, guys. So recording has been started. Today's agenda is we are going to read a topper copy of essay. We will be discussing two, three essays if possible. So she has got around 149 marks in essay in 2020 mains examination. So the agenda will be we'll first read the essay verbatim, and during the reading of essay, if you guys have any inputs or if you like any particular things, just note it down in a piece of paper, and at the end of essay reading, we'll discuss it one by one, or even if after two or three pages, if somebody wants to add something, feel free to speak up at that time. हम लोग बेसिकली यही पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अटेम्प्ट करा है, क्या सही करा है, क्या गलत लग रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है. तो विल रीड टू थ्री एसेस. विल स्टार्ट विद द सेकंड पीडीएफ दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ठीक है सर, स्टार्ट कर दीजिए आप. दो पीडीएफ थी, इसमें वी हैव स्टार्टेड विद द सेकंड वन. ठीक है, तो बेसिकली वी आर गेटिंग बाय रीडिंग दिस वी आर ट्राइंग टू गेट आइडिया ऑफ हाउ टू आइडेंटिफाई the introduction keywords, the connectors, or say for example how they have done their rough work. So people say that the examiner may not see your answer first but a little bit your rough work. So we'll also start with their rough work to have a broad idea. So the essay topic is farmer and destiny of a nation. Let me read it out first. The question is, in the destiny of the farmer lies the destiny of the nation. So just checking out her rough work. So it goes like farmers, who are they, what do they do, how are their destiny of, how are they the destiny of a nation. फिर उसके बाद their contribution. So food security, basics of economy, agriculture, basis of LR, I think relations, international relations. Where examples from history. Where the fifth point is India's case, post-independence situation. How was it? How it shaped India. Where planned economy, food insecurity. Where green revolution. Where now evergreen revolution. फिर issues faced by Indian farmers, फिर no definition. अच्छा यहाँ पे बताना है. फिर other issues है यहाँ पे input, land, solution, conclusion में she gave a quote of M.S. Swaminathan. Okay, so this is it. We'll start with it. ठीक है, तो in the destiny of the farmer lies the destiny of the nation. So in the early Paleolithic age, when Homo sapiens gave up foraging and took up farming, little did they know that they were about to start a human civilization. The early humans started domesticating plants and set off the wheel, which has been rolling for the past 10,000 years. So the comment is very good start of the essay as the examiner writes here. अच्छा है, हिस्ट्री से लिंक कर दिया है, बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन है. So farming is the oldest means of livelihood. It forms the architectonic base of an economy of a nation. It is the root that feeds a nation. If the roots are strong, the trunk is healthy, the leaves are full of life, and the tree of a nation is bountiful. So your explanation using figure of speech adds value to the essay. Comment आया यहाँ पे. So therefore, the farmers form the network of pillars on which a nation stands. They are the source of quench our most basic needs of food security. Our farms feed the industries of the country. It is due to our farmers' sweat that the nation goes to sleep on full stomach. So she's using a very beautiful language. जैसा कि we can find in newspaper also. So in the last 2000 years of human history, there are enough examples of agriculture revolution leading to expansion of empire. In the 6th century BC, during the age of Mahajanpada, it was the agriculture surplus which led to the growth of trade and commerce in Magad. The surplus led to people taking up specialized professions and brought prosperity
brought prosperity. Magad became the strongest empire. तो ये हिस्ट्री से स्टार्ट कर रही है, ऐसा दिख रहा है. कमेंट आया कि यू हैव क्रिएटिवली nurtured, I think nurtured, this is nurtured, so the development of human and the rise of the agriculture. Okay, so फिर first century के बाद से she has moved on directly to industrial revolution. So in 18th century Europe, the industrial revolution transformed the continent to modern age from the dark age of medieval period. It was the agriculture surplus which gave time to people to take up innovative activities, thereby shaping the destiny of the Europe. Okay, I don't find any connector here. There could be a very good connector here, but albeit she has written it. The spillover effect of fast-paced development in Europe brought about devastating changes. India became a colony of Britain. The start of Indian agriculture was diminished into ashes when British left India. ठीक है, तो उसने एक ही पैराग्राफ में पूरा समराइज कर दिया और ये लिखा है. अब आई थिंक शी विल मूव टू इंडिया. So when the newly independent India decided to embark upon the journey of free nation, the then leader turned to agriculture. Jawaharlal Nehru, in his speech said, everything else can wait but not agriculture. The first and foremost concern of Indian leaders was the food security of the people. ठीक है, I also think कि अच्छा करा ये, क्योंकि the main question was on the destiny of nation. So for creating background, this was enough. और now she has started with the Indian history, independence के बाद से. That is good, I think. So this particular thing which is showing on my screen could also be an introduction to any other essay. When the newly independent India decided to embark upon the journey of a free nation, then the leader turned to agriculture. Everything else can wait, but not agriculture. This could be a very good introduction to any other question on agriculture. Where after a short stint with the plant policy to कोई कुछ कह रहा है क्या? Anybody is saying something? नहीं. You continue. ठीक है. So after a short stint with the planned policy to focus on heavy industries, India turned its attention to agriculture. Despite a successful growth story of agriculture, India had to face multifaceted problems of wars with neighbors, fast increasing population, leading to increased demand for food. India had to import wheat from USA under the PL 480 program to support its people. Okay, that's good. India pledged to become a food sufficient nation and adopted green revolution policies under the guidance of Dr. Swaminathan. With the use of HIV seeds and special and chemical fertilizers, India's agriculture grew at an unprecedented scale. It transformed the food importing nation to a food sufficient state. Today, India is a food exporting nation, and all the credits go to land filling farmers of the nation. ठीक है, this is also good. I think यहाँ पे थोड़ा contribution को और add up कर देना था. Let's read the comment. You can talk about white revolution under Dr. Kurian, parallelly which transformed the milk sector. Also, you can have discussed the evolution of development of farming comprehensively. ठीक है, आगे का पढ़ते हैं फिर. So, however, the Indian farmers, which comprises of 70% of total population according to FAO, suffers from multidimensional problems today. The farm protests, which have erupted after the 3 new legislation passed by the parliament, highlight that the destiny of farmer is at the crossroads of 2 diverging paths. अब क्या बात है? The first and the foremost issue is that there is no unanimous definition of a farmer in India. In the winter parliament session of December 2019, when Minister of Agriculture was asked who is a farmer, he responded that there is no definition of a farmer. It leads to the problem of difficulty in identification of beneficiaries of government policy. तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बताया. दिस शी इज लिंक्ड विद द करंट अफेयर्स और इससे लेजिटिमेसी मिली इसके आंसर को. फॉर एग्जांपल कि इसने जो पार्लियामेंट सेशन का यहाँ पे एनेक्डोट डाला, दिस इज वेरी गुड. फिर बिसाइड्स India is a country which largely depends on the monsoon, that is 65% of Indian farms are not irrigated. The vagaries and uncertainties of monsoon coupled with issues of low productivity often lead to unprecedented scale of farm distress.
The NCRB 2019 data shows that farmers' suicide comprises 7.4% of all suicides cases in India. तो ये distress को elaborate कर रहे हैं. फिर further the incomplete land reforms initiative has led to hampering of land digitization programs. Without a proper land record, farmers often fail to avail institutionalized credit, therefore resorting to high interest in formal money lending. ठीक है, अब ये फार्मर्स में जो इश्यूज है उसको एलोबरेट कर रही है पॉइंट वाइज पॉइंट. फिर द एग्रीकल्चर सेंसस 1516 has also shown that Indian agriculture land are highly fragmented. The small and marginal farmers who hold less than 2 acres of land comprises 86% of total farms in India. So on top of this, the agriculture pricing aspect has been a major impediment to Indian farmers' destiny to doubling their income. The middlemen, along with the APMC official, often exploit the farmers. According to a report, a farmer only gets 30% of what a final customer pays. So many scholars have pointed to the market-based model of economy that India adopted in 1991 for the precarious situation of farmers. फिर अब ये scholarly view लेना चाह रहे हैं यहाँ पे. I think she is more trying to give legitimacy to her answer. Now that's very good. Utsa Patnaik in her book Republic of Hunger mentioned that the farmers of the third world countries are feeding the West. The cropping pattern of India is to suit the export system to the West. She argues that wheat and rice were import on millet consuming nations. Okay. She argues that the wheat and rice were imposed on millet consuming nations. ठीक है, तो for the need of the West, we are giving our potential to them. Acknowledging the ill effects of such neoliberal policies, today India is moving to a more sustainable means of agriculture. India aims to double farmers' income by 2022. It aims to correct the lopsided effect of Green Revolution, which benefited only few states. India is talking of an evergreen revolution with focus on resilient crop like millets. यहाँ पे we can also mention that the year 2022 has been declared on demand of India as the international year for millets. So moreover, to benefit the farmers who form the backbone of the nation, India is taking up multiple initiatives. The idea of zero budget natural farming based on eliminating chemical fertilizers gaining currency. The cropping pattern are enhancing to a more sustainable form. The government is also introducing schemes like PM Krishi Sichai Yojana, irrigation for irrigation, per drop more crop, PM Fasal Bima Yojana for insurance, and in case of crop failure, have been quoted neem coated urea for rational use of fertilizers. It also released the Model APMC Act to reform existing models. Further, the new 3 Farms Act aimed to increase selling options for farmers with institutionalization of contract farming. Okay, this is very good anecdote here. Further, in order to deal with the issues of stubble burning, which spark of debate every winter, there have been innovative solutions like happy seeders. Also, the problem of feminization of agriculture comes up due to migration of men to cities, leaving the task of farming to women. Government has introduced direct benefit transfer to provide some cushion in lean seasons. Okay, so there are some comments here. So the examiner says that you can talk about diversification of crops, mixed farmings, animal husbandry, organic farming can be a value addition. Also the SF formula, farm to fiber, fiber to fabric, fabric to I think this is fashion to foreign. This could add a new dimension. So he says this. Also, there's one more comment. Your conclusion is optimistic and futuristic. He says good. Okay, as the farmers problem are now this is the good conclusion as per the evaluator. As the farmers problem are manifold, it requires holistic approach to solve these issues. Farmers form the basis of a nation's economy. Agriculture feeds the people and its product fuel the engine of human civilization set up by Paleolithic humans.
अच्छा पेलियोलिथिक से स्टार्ट कर रहा था, पेलियोलिथिक पे एंड हो रहा है. दिस इज अ वेरी गुड थिंग. Therefore, M.S. Swaminathan says, if agriculture goes wrong, nothing else can go right. The destiny of a nation and the path it takes starts from the farmers. So this was the essay जो उन्होंने लिखा है. और ये एक बार उनका जो समरी है जो उन्होंने यहाँ लिखा है उसको फिर से देख लेते हैं अपन कि who are the farmers, what do they do, what's their role in destiny, their contribution. फिर इंडियाज केस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर प्लांट इकोनॉमी, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन, एवरग्रीन अभी जो हो रहा है, फिर इश्यूज हो रहे हैं कि डेफिनेशन नहीं है, फिर अदर इश्यूज है जैसा कि मैकेनाइजेशन नहीं है, लैंड नहीं है, फिर सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम जो अभी अभी स्कीम चल रही है, फिर आखिरी में कंक्लूजन इज फॉर एम एस स्वामीनाथन कोट. सो दिस आई थिंक दिस इज अ गुड ऐसे जो काफी सही से एलोबरेट भी करा है. 2-3 पॉइंट इसमें जो है वी कैन ऐड इनटू आवर डिस्कशन दैट वी आर डूइंग इन आवर ग्रुप. So now this is the first essay. Now mic is open. Please add any suggestion or any comment to this essay. Anyone want to add? Please add this. Can you read that again? Where he defined farmers. Okay. एक बार एक सेकंड, सॉरी इंटरप्ट. एक बार ना देव सर, एक बार पूरा ऐसे का समरी देख लो पेज बाय पेज. मतलब एक स्ट्रक्चर देखना है बस कि हाँ इस पैरा में ये करा, इस पैरा में ये करा, ये सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट है इस पैरा का. समझ रहे हो ना? हाँ जैसे अपन PSR में करते हैं ना उसी तरीके से. ठीक है. ऑलमोस्ट 10 पेजेस का ऐसे है. पीपल वुड हैव लॉस्ट द लिंक. हाँ people would have lost literally. इसलिए एक बार लास्ट में पढ़ा था. चलो एक बार और फिर से we'll do the para-wise summary. So पहले पैराग्राफ में शी स्टार्ट विथ पेलियोलिथिक एज और वही ह्यूमन सिविलाइजेशन के बाद से फिर बात कर रहे हैं कि ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड और आर्किटेक्टोनिक बेस, इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमी. फिर यहाँ पे एक बढ़िया लिखा था कि इफ द रूट्स आर स्ट्रॉन्ग, द ट्रंक इज हेल्दी, द लीव्स आर फुल ऑफ लाइफ एंड द ट्री ऑफ अ नेशन इज बाउंटीफुल. बहुत बढ़िया सा लिखा हुआ है यहाँ पे. फिर दी फूड सिक्योरिटी की बात. एक सेकंड. अब देखो जो अपन कर रहे हैं ना उसमें ऐसे जो अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे हुए हैं ना इसको कॉपी करना है. जो ये वाला लाइन था ना, रूट्स दैट फीड्स द नेशन ऑफ द रूट्स आर स्ट्रॉन्ग, तो इसी चीज को बस स्क्रीनशॉट लेके उसमें डाल दो जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट होगा ना उसके अंदर. या फिर अगर इंट्रो पसंद आया तो इंट्रो डाल दो. तो ऐसे ही जो एकदम यूनिक पॉइंट्स होते हैं, बढ़िया पॉइंट्स होते हैं, वो डालने अपने को. ठीक है, आगे कंटिन्यू कर लीजिए सर. एग्जैक्टली. एंड एक और चीज है ना, ये देखो ये ऐसे अपन अभी पढ़ रहे हैं ना, तो अभी तो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, बट इसके बाद अपन जितने भी ऐसे पढ़ेंगे उस सबका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगा. तो आई सजेस्ट एवरीवन कि यार आप ये सारी चीजों को ना हाईलाइट कर दो, रेड मार्किंग कर दो, यही सब कुछ बाद में रिवाइज कर पाओ एग्जाम के पहले भी. मतलब आई हैव वेरी स्ट्रांग ओपिनियन कि यार ऐसे के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो भी टॉपर के 10, 15, 20 ऐसे है ना उसको अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ लो, उसी चीज को रट्टा मार लो, उसी चीज को रिप्रोड्यूस कर दो. वेरी इफेक्टिव. थोड़ा सा मतलब मोल्ड करना सीखना चाहिए बस. यस. सो आई ऑलवेज वंडर्ड कि ऐसा टॉपर्स क्यों बोलते हैं कि एक्स्ट्रा क्यों नहीं पढ़ना है. जैसे अभी दिशम सर भी बोल रहे थे कि यू डोंट नीड टू स्टार्ट रीड एनीथिंग एक्स्ट्रा. तो वो इसलिए कि जैसे मुझ जैसे लोग जो कभी बिगनर थे तो वी डोंट हैव इनफ कंटेंट. फिर I brainstorm on it and then I realized that after reading this much still I was not in a position to reproduce it. So the main thing was कि क्यों नहीं reproduce हो रहा है was that the content was not streamlined. Content was there but not streamlined. So अभी यहाँ से मेरे को ये कीवर्ड यहाँ का दिखा है, this I will save in somewhere and this would be streamlined here. Okay, so the main thing is in essay you can elaborate your point in multiple ways. बस उसको elaborate करने के लिए you have to streamline your knowledge. ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं. अच्छा, कोई अगर टाइप कर सकता है तो कैन प्लीज टाइप दिस एनेक्डोट, this present anecdote in our compilation. मैं लिख रहा हूँ और मैं बाद में सेंड कर दूंगा. All right, thank you. For the farmers, हाँ तो network of pillars बोल रहे हैं. ये थर्ड पैराग्राफ आई थिंक. हाँ
थर्ड पैराग्राफ में शी टॉक्स अबाउट दैट फार्मिंग इज अ नेटवर्क ऑफ पिलर ऑफ नेशन, जहाँ नेशन स्टैंड करता है. फिर आई थिंक शी स्टार्टेड अगेन विद द हिस्टोरिकल पार्ट, जैसे मगध एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्ग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सरप्लस. फिर 18th सेंचुरी में जंप हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मॉडर्न एज, एग्रीकल्चर सरप्लस. फिर शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ द यूरोप. फिर एक पैराग्राफ में उन्होंने बढ़िया से समराइज करा था, स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ फास्ट पेस डेवलपमेंट इन यूरोप ब्रॉट about devastating changes in India. India became a colony of Britain. The rate of Indian agriculture was diminished into ashes when British left India. बहुत बढ़िया से. फिर स्टार्ट करने के लिए कि when the newly independent India, इन्होंने इंडिया का स्टार्ट करा. अच्छा, एक सेकंड, बैकग्राउंड बताया यहाँ तक नेहरू. कितने पेजेस हो गए? यहाँ तक कितने पेजेस हो गए? यहाँ तक सॉरी कितने पेजेस हो गए यहाँ तक? आई थिंक दिस इज द 6th पेज सर. नहीं, थर्ड दिख रहा है मेरे को तो. 1 2 3 and 4. तो एट द एंड ऑफ फोर्थ पेज शी हैज हिट इंडिपेंडेंट इंडिया वाला पार्ट, राइट? यस. ठीक है. यस एंड हाँ, इसके बाद भी शी डिड इट वेरी स्मार्टली. शी समराइज्ड इन द वन पैराग्राफ इटसेल्फ. तो उन्होंने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंट इंडिया से, नेहरू से. फिर उन्होंने बोला कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट द एग्रीकल्चर. दिस इज अ वेरी गुड कोट, जैसा बताया मैंने पहले. फिर द फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, इंडियन लीडर्स वाज मोर कंसर्न अबाउट द फूड सिक्योरिटी. फिर आफ्टर अ शॉर्ट स्टिंग द प्लान पॉलिसी मतलब चेंज आया. फिर फेस मल्टीफेसेट प्रॉब्लम्स, इंक्रीज डिमांड फॉर फूड. फिर PL 480 स्कीम. फिर 8th पैराग्राफ में अडॉप्टेड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करी डॉक्टर स्वामीनाथन. फिर क्या स्टेप्स लिए HY सीड्स फर्टिलाइजर्स. फिर 9th पैराग्राफ में continuing in the 8th paragraph, she talked about food exporting nation, मतलब the present scenario. फिर in the 10th paragraph the Indian 3 new legislation, she linked it with the current affairs जो अभी चल रहा है to give it more legitimacy. First and foremost issue that the unanimous definition. Now this is also very smart point. Question paragraph number 11 में she gave the issue. The main issue is that farmer definition is not defined. अभी जैसे सर ने बोला था कि read out this, मैं पढ़ देता हूँ. The first and the foremost issue is that there is no unanimous definition of farmer in India. In the winter parliament session of December 2019, when Minister of Agriculture was asked who is a farmer, he responded, there is no definition of a farmer. It leads to the problem of difficulty in identification of beneficiaries of the government policies. ठीक है. फिर उन्होंने एक और मल्टीपल इश्यूज बताया, जैसे इरिगेशन नहीं है हमारे यहाँ, प्रोडक्टिविटी कम है. उसके बाद वी हैव द इशू ऑफ फार्मर्स सुसाइडिंग देमसेल्व्स. फिर उसके बाद जो लैंड रिफॉर्म स्टार्ट हुए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस, उनकी अभी क्या स्थिति है वो बताया कि देयर it is still required. फिर उन्होंने इनिशिएटिव्स की बात करी, जैसे लैंड डिजिटलाइजेशन, फिर लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर करना. फिर उन्होंने शी टॉक्ड अबाउट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स दैट दे कंप्राइज 86% ऑफ टोटल फार्मर्स. फिर प्राइसिंग एस्पेक्ट वाज आल्सो रेज. फिर जो अभी करंट APMC इशू चल रहा है उसको लिंक करें यहाँ पे. फिर according to our report, a farmer only gets 30% of what a final customer pays. So this is also a good point. फिर मैंने स्कॉलर्स के व्यू डाले उन्होंने कि उत्साह पटनायक लिख रही है रिपब्लिक ऑफ हंगर में देता, farmers of third world countries are feeding the West. The farming pattern of India is to suit the export system of the West. And also she argues that the wheat and rice were imposed on millet producing countries, consuming nations, sorry. फिर she talks about I think this is the 15th paragraph, acknowledging the ill effects of neoliberal policies, that it is getting unsustainable. फिर India's commitment of doubling farmers income by 2022. दो अब 22 तो स्टार्ट हो गया, लेट्स सी होता है या डबल नहीं. फिर विच बेनिफिटेड दी ओनली फ्यू स्टेट्स. फिर ये जो डिस्टिंक्शन है उसके लिए नाउ दी अभी जो फेमस चल रहा है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, उसका टॉपिक यहाँ डाला उन्होंने. फिर मिलेट्स क्या लिखा. फिर जो अभी प्रेजेंट में इनिशिएटिव से जो टॉक ऑफ द टाउन है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होना चाहिए यहाँ पे. फिर क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होना चाहिए. फिर अभी इनिशिएटिव्स है लाइक
कृषि सिंचाई योजना या फिर फसल बीमा या फिर पर क्रॉप मोर क्रॉप या फिर अभी जो फार्म एक्ट आए के कारण नए रिफॉर्म्स आए हैं, उसके लिए शी रोट अ गुड टर्म की विद दैट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। दिस इज गुड कि उन्होंने एक सम अप कर दिया 1-2 लाइन में। फिर आई थिंक दिस इज द 17th पैराग्राफ, फर्दर टू डील विद द इश्यूज ऑफ स्टबल बर्निंग पर्टिकुलरली एनसीआर। तो हैप्पी सीडर्स का लिखा उन्होंने। फिर हैप्पी सीडर्स के बाद इन द सेम पैराग्राफ शी टॉक्ड अबाउट फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। फिर इन द 20th पैराग्राफ आई थिंक शी स्टार्टेड कंक्लूडिंग, तो होलिस्टिक अप्रोच की बात करी। अच्छा, वन थिंग आई like is that she started with Paleolithic humans and she is concluding with Paleolithic humans. So this is a good point. After it, the final conclusion goes with Swaminathan's definition: if agriculture goes wrong, nothing else can go right. This is good conclusion, I think. Yes. This is it. This is first answer, first essay. आगे बढ़े क्या? सेकंड essay देखें? नहीं, एक बार ना इसको एनालाइज करो ना, इसमें क्या क्या किसको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या था, मतलब एक तो ना इसमें लोग ये है कि इट शुड बी ओपन फॉर एवरीवन की कुछ क्या लगा आप लोग बता दो। एक तो ना जैसे इन्होंने जैसे वो लिखा, एक रिपोर्ट का मेंशन किया, मतलब इनको फैक्ट पता था, रिपोर्ट का नाम वगैरह नहीं पता था, फिर भी इन्होंने डिनोट किया यहाँ पे। सो दैट इज समथिंग वी कैन लर्न। ठीक है, हाँ, वो पॉइंट ना जिसमें कि 30% ओनली गेट्स 30% व्हाट कंज्यूमर्स पे। उसमें रिपोर्ट का नाम नहीं लिखा, लाइक अ रिपोर्ट सेज, तो ऐसे कर यार पता है मतलब एक चीज मुझे थोड़ी सी ना ऐसे के बारे में, जो फर्स्ट आई लिस्ट आउट द गुड पॉइंट्स दैट आई लाइक्ड। इनका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, जो फ्लो था आंसर्स का काफी बढ़िया था। जैसे एक जगह पे था उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया स्टार्ट किया था, उसके पहले पैराग्राफ में इंडिया की बात करी थी, जहाँ पे यूरोप की बात करी उसके पहले पैराग्राफ में उसका यूरोप का वोट था। तो शी हैज इवन दो विदाउट यूजिंग कनेक्टिव्स शी हैज यूज द कीवर्ड्स इन अ प्रॉपर मैनर। इनका फ्लो काफी बढ़िया था। एंड फिर जो डेटा उन्होंने यूज करा है, बहुत सारे डेटा उन्होंने यूज करा है, बहुत सारे रिपोर्ट्स यूज करे हैं, प्रॉपरली बुक का नाम स्कॉलर नेम प्रॉपर डाला है, हिस्टोरिकल डायमेंशन का बहुत बढ़िया यूज करा है इन्होंने। तो ओवरऑल इट इज अ ग्रेट एसे विद ग्रेट फ्लो, नंबर तो बढ़िया मिलेंगे। बट मुझे ना एक चीज थोड़ी सी खटक रही है, अगर टॉपिक का नाम देखेंगे ना अपन कि इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, क्या है एक बार देखना टॉपिक का नाम। In the destiny of the farmers lies the destiny of the nation. In the interest of the farmers lies the destiny of the nation. मेरे को थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ना, जो सेकंड हाफ ऑफ द ऐसे है, लास्ट 4-5 पेजेस थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है टॉपिक से डायरेक्टली। टॉपिक के अंदर जो डेस्टिनी ऑफ नेशन को एंड डेस्टिनी ऑफ फार्मर्स को लिंक करना है ना, उसको थोड़ा सा लास्ट 4-5 पेजेस में भी डायमेंशन मिस कर दिया उन्होंने। मतलब ठीक है, शी हैज लिस्टेड आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फार्मर्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ इंडियन फार्मर्स, बट ये क्वेश्चन इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पे थोड़े इंटरनेशनल डायमेंशन जो चाइना में हुआ है, जो भी है ना, जैसे यूएसए के अंदर जो है, इट शुड हैव इंक्लूड दैट। मतलब ज्यादा इंडिया स्पेसिफिक हो रहा है, मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा। एंड एक दो अलग अलग टाइप होते हैं ऐसे लिखने के, एक होता है नैरो टाइप स्टिकिंग टू द टॉपिक कंप्लीटली, एंड एक होता है ब्रॉड टाइप जिसमें ब्रॉडर इश्यूज को इन्वॉल्व करा जाए। तो नैरो टाइप में डिफरेंस ये आता है ना कि यार हम सीधा क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं। जैसे इसमें अगर डेस्टिनी ऑफ नेशन और फार्मर्स का लिंक करना है तो हम अलग अलग स्फीयर में बता सकते हैं। इकोनॉमिक स्फीयर में कैसा है कि अगर फार्मर्स खर्चा करेंगे तभी तो कंज्यूमर्स ज्यादा, अगर पॉपुलेशन ज्यादा फार्मर्स की है तो जो स्पेंडिंग कैपेबिलिटी उनकी बढ़ेगी, तभी तो इकोनॉमी भी चल पड़ेगी। तो इकोनॉमिक स्फीयर में इसका इंपॉर्टेंस ये बोल सकते हैं। सोशल रिलेशन हम बात कर सकते हैं, करेक्ट, एक्सपोर्ट ग्रुप का बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्फीयर हो गया। जैसे अगर सोशल स्फीयर में बात करना हो, अगर एक फार्मर सुसाइड करता है तो उसके अगल बगल के उसके बच्चे लोग सफर करते हैं, हेल्थ एजुकेशन आउटकम सफर करेंगे, उसके जो बीवी है वो भी थोड़ा सा मतलब दुखी रहेगी काइंड ऑफ तो मतलब एक ओवरऑल पूरा जो एटमोसफियर, सोशल एटमोसफियर खराब होता है। तो दैट इज हाउ, अगर एक फार्मर सुसाइड करता है तो उसका सोशल स्फीयर में कुछ खराब होता है, उसकी फैमिली सफर करेगी, विलेज सफर करेगा, दैट इज हाउ नेशनल इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये दिखा सकते हैं सोशल स्फीयर में। इंटरनेशनल स्फीयर का मैंने बोल दिया कि अमेरिका में जो हुआ था, मतलब वहां पे कैसे मैकेनाइजेशन काफी हो चुका है, तो फार्मर्स आर फार मोर रिचर। एक चीज ये, सब्सिडीज काफी स्ट्रांग है। तो मतलब आई थिंक यार वही है, इस टॉपिक को ना हर पैराग्राफ के बाद में या फिर हर डायमेंशन के बाद में देयर वाज अ नीड टू रीइंफोर्स द फैक्ट कि हाउ डेस्टिनेशन ऑफ फार्मर इज लिंक्ड विद डेस्टिनी ऑफ नेशन।
हर पैरा में दिखाना चाहिए था ये। तो आई वुड हैव रिटन दिस ऐसे, अब थोड़ा सा डिफरेंटली, बाकी कंटेंट तो वही रहेगा। Great points. There was a link. There was a link. This link between the topic of the essay and the content, but content was good. I think she must be lacking with the content while writing the answers. So shows. तो उसके अलावा she did मतलब जो कर सकती थी she did it. नहीं, But she saying कि still don't उनका did it. कंटेंट ग्रेट है, मतलब उनका कंटेंट बहुत बढ़िया है, मतलब शी इज वेरी वेल रेड, शी हैज ऑसम नॉलेज ऑफ कीवर्ड्स एज वेल एज एवरीथिंग, बट जो ऐसे की जो डिमांड है ना, डिमांड है, हाँ, थोड़ा सा जो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग बोलो या थोड़ा सा मिस हो गया, बट देन वो बहुत ही माइन्यूट है यार, एग्जाम हॉल में इतना नहीं कर पाते, बहुत ही ग्रेट ऐसे है, मतलब आई रियली एंजॉयड एवरीथिंग ऑफ दिस ऐसे, बहुत बढ़िया ऐसे है। राइट, फ्लो अच्छा है, क्रिएटिव होते हैं, पता है जब देख रहे हैं ना अपन तो काफी साफ सुथरा लग रहा है, एकदम फ्लो हो रहा है। राइट, तो वो एक ऐसे की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, और वो यहाँ दिख रही है, मतलब फ्लो हो रहा है ऐसे। राइट, अरे कीवर्ड्स यार, इसमें क्या खतरनाक कीवर्ड्स यूज करे भाई, मजा आ गया मतलब। सही। बट दरअसल सर आप ये देखिए ना कि शायद उन्होंने कुछ चीजें मिस आउट कर दी है, जैसे परमानेंट लैंड रिफॉर्म्स जो हुए है ना कॉलोनियल टाइम पे, तीनों ही लैंड रिफॉर्म्स, उसको मेंशन किया जाना चाहिए था। वो एक हिस्टोरिसिटी, एक प्रॉब्लम बनती गई, परपिचुएटेड होती गई, जो कि अभी तक चल रही है। लैंड रिफॉर्म्स हमारा पहला अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन, इफ यू एग्री विद मी। तो वो सारी चीजों को उन्होंने मिस आउट किया है, क्योंकि उसी की वजह से हमारे SMF 86% आज क्यों है, सिर्फ उसी की वजह से, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू गिव एसेंस टू द फार्मर्स की तुम्हें सबको लैंड मिलनी चाहिए, प्रॉपर लैंड यूटिलाइजेशन होना चाहिए। देयर आर फार्मर्स हु आर वेरी मच रिच एंड देयर आर फार्मर्स हु आर नॉट, है ना। तो वो इशू डाला जा सकता था। इसमें एक और डायमेंशन मुझे याद आ रहा है, हम इसमें पॉलिटिकल डायमेंशन बोल सकते हैं कि जैसे फार्मर प्रोटेस्ट में अपन ने देखा ना कि हाउ पावरफुल जब लॉबी है फार्मर्स की, वो लोग एक स्टेट जो मोस्ट क्या बोलते हैं ना मेजोरिटेरियन लीडर जीत के, जो सबसे मेजोरिटेरियन लीडर जीत के आया है विद द मेजोरिटी दैट इंडिया हैज नेवर सीन बिफोर, ऐसे लीडर को भी उसने फार्मर्स ने झुका के फार्म लॉज रिपील करने को फोर्स किया। दैट शोज द पॉलिटिकल पावर ऑफ फार्मर्स। एक चीज, एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, योगेंद्र यादव जी यूज करते हैं बुलक कार्ट कैपिटलिस्ट या फिर बुलक कार्ट पॉलिटिशियंस। तो 1960-70s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद में इंडिया सीन द डोमिनेंस ऑफ फार्मर्स इन चरण सिंह। पॉलिटिक्स। हाँ, तो मतलब ये एक पॉइंट आना चाहिए था। तो मतलब बेसिकली दिस शोज ना हाउ डेस्टिनी ऑफ फार्मर एंड नेशन इज लिंक्ड पॉलिटिकल स्फीयर में। तो मतलब मैं अगर इस ऐसे को लिखता ना, तो आई वुड हैव सेपरेटेड इट इन दिस डायमेंशन, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, देन इंटरनेशनल डायमेंशन, जिसमें दिखा सकते हैं ना कि यार इंटरनेशनल लेवल पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल सकते हैं कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर तो वैसा नहीं था, बट रिवर्स के अगल बगल में ही तो आयरन एज वगैरह आया ना वो सब। आई थिंक जो रफ वर्क है वो लास्ट है जहां पर रफ वर्क लिखा होता है, जैसे कि इन्होंने ऐसे के जस्ट बात किया, ऐसा कर सकते हैं। मतलब क्या? हाँ, आई थिंक ये बहुत स्मार्ट मूव है। मैंने है ना? कुछ टॉपर्स की कॉपी देखी है। दे स्टार्ट द ऐसे विद द रफ वर्क इटसेल्फ। जैसे विक्रम ग्रेवाल सर की कॉपी आप देखो 2018 CSE, तो ही स्टार्ट विद द रफ वर्क, और रफ वर्क वेरी नीटली करा है ताकि द एग्जामिनर कैन हैव अ ग्लांस थ्रू आउट द ऐसे इन सिंगल पेज। दिस इज वेरी गुड, कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग दैट। Even Tina Da will eat that at the last. But make sure that rough work has to be crossed, properly. हाँ, yes. Otherwise, it would be a blunder. लेकिन मैंने जब रियल QC ये भी देखा था UPSC की वेबसाइट पे, उस पे लास्ट पेजेस में 3 पेजेस दिए हुए हैं रफ वर्क के, तो वहां पर करना जरूरी है या पहले भी हम कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया हुआ? आई थिंक व्हेन उसमें जब हम उनका मॉडल एक देखते हैं कॉपी, तो उसमें लिखते हैं कि इफ यू हैव टू कैंसल आउट एनीथिंग, जस्ट ड्रॉ अ लाइन एंड राइट कैंसल। सो हम कहीं पे भी अगर किसी पेज पे हम मिस आउट कर रहे हैं तो वी कैन क्रॉस आउट इट एंड वी कैन राइट कैंसल। सो दिस इज अ स्मार्ट मूव आई थिंक, कि अपन एक ग्लास दे दे एग्जामिनर को, पहले ही पढ़ ले और समझ ले होने वाला है अंदर। ठीक है, इसमें और कुछ किसी को अच्छा लगा या फिर और कुछ ऐड करना हो तो वी कैन डू, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड आल्सो।
ये किस टॉपर की कॉपी है? सॉरी, मैंने लेट ज्वाइन किया था थोड़ा। इनका नाम है नादिया, और इनकी कॉपी भी शेयर करी है इसी ग्रुप में। ये कॉपी इसी ग्रुप में डली हुई है। इनका ओके, इनका जो थैंक अभी यू। इनका एक ऐसे शायद फोर्थ इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर है दूसरी कॉपी में, वो इससे काफी अच्छा है। आई हैव रेड इट। ठीक है, उसको भी देखते हैं। एक बार इसके नीचे कैसे वो पढ़ लो। हाँ, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक और चीज अच्छा सर, एक बार ना एक क्यूसीए कॉपी मैंने डाली है, एक बार स्क्रीन पे दिखाना हो। अच्छा, एक मिनट। हाँ, मैंने सीएससी वाले ग्रुप पे डाल दिया है, चैनल पे। देखना है क्या वो क्यूसीए कॉपी कैसे है, क्या है, या जरूरत नहीं लग रही है? हाँ, ऐसे वाली यू कैन हैव अ ग्लांस। हाँ, ये वाली ऑफिशियल कॉपी जो यूपीएससी ने रिलीज करा हुआ है ऐसे के लिए, इतना ही स्पेस मिलता है अपने को। ये फर्स्ट पेज तो पूरा गया, देखना आगे सेक्शन। हाँ, आई थिंक ये 2019 का पेपर है, अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। ठीक है, आगे चलो, एक बार नंबर ऑफ पेजेस काउंट कर लो प्रॉपरली, कैसे दिए, कितने दिए। यहाँ पे सेक्शन नहीं चालू हो रहा है, तो ये पेज नंबर 5 है ना? 16 pages for I think one question. 16 कहाँ है, 11 ही तो पेजेस हो गए ना, हम 5 पे थे, 16 पे है। 11 पेजेस हैं, 11। पाँच से 11 स्टार्ट तो एंड इसमें हाफ से पेजेस हैं। तो इसमें से एक पेज आप रफ जैसे वर्क के लिए यूज इसको करना चाहते हो, ऐसा इंक्लूड बोल रहे करके हो? 12 है। रफ वर्क के लिए एक्स्ट्रा 3 पेजेस पे दिए हुए हैं वैसे। हाँ, वही कह रहा था मैं कि शुड वी डू रफ वर्क ऑन द 11th और 12th पेज, और शुड वी डू इट एट द लास्ट, जो स्पेस दिया रहता है वहां पे। रबर के लिए कंबाइंड स्पेस लास्ट में दे रखा है। यस, 28 पेज नंबर 29। यार एक और मतलब स्मार्ट आइडिया बोल सकते हैं ऐसा, कि जो कंबाइन स्पेस है वहां पे गंदा वाला रेफर करो, एंड देन जो सबसे आखिरी वाला पेज है ना, 12th पेज, उस पे प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर बना के रख दो, एंड उसको क्रॉस ऑफ कर लो लास्ट में। एक हाँ, टॉपर मैं ने वाला जो क्वेश्चन हम अपने क्वेश्चन उस पे पेपर पे भी रफ कर वर्क किया था, वही क्वेश्चन पेपर पे दिव्यांशु निगम ने किया था, तो बारी बारी रेफर ना करना पड़े। वो मतलब जैसे पेज पलटने पड़ेंगे अगर हम किसी भी पेज पे करते हैं तो। टाइम सेव हो जाए। ठीक है, आगे चलें क्या अब अपन? लास्ट 5 मिनट्स में ये रफ पेज पे भी ऐसे वो लिख के आ सकते हैं कि एग्जामिनर को मतलब देखने में ही लगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कर लो देव सर। हाँ, ये सेकंड ऐसे पहले वाला देखते हैं पहले। विल शेयर इट ऑल्सो। नहीं नहीं, उसी पीडीएफ के अंदर सेकंड हाँ ऐसे हाँ देख लो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट। कुछ लोगों ने मांगा था, आई कैन एक मिनट शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक कर दीजिए। हम्म।
It's not going. ठीक है, I'll share it later. Okay, so second essay. Anyone else want to volunteer reading it out? या मैं ही करूं? यार कोई और कर लो प्लीज, विजय सर, गौरव सर। कोई और करना चाहेगा? नहीं सर, आप स्टार्ट करो सर। अच्छा चलो मैं ही करता हूँ। तो दो क्वेश्चंस थे, उसमें से शी ऑप्टेड द फर्स्ट वन। कैरेक्टर में ऑलमोस्ट बी कॉल्ड द मोस्ट इफेक्टिव मींस ऑफ परसुएशन। बड़ा इंस्पायरिंग सा कोट है। So in 1917 when Mahatma Gandhi entered, अच्छा let me take a pause and move on to the rough work first. करा है यहाँ पे rough work? हाँ, she did it. ठीक है, तो character Gandhi asking women to participate in national movement, explain the student why we choose certain to endorse. Okay, persuasion, coercion. How can someone be persuaded? Coercion या hegemony. How character is effective. Character attributes क्या है, character क्या है, leadership क्या है, trust कैसे बनेगा, live by example. Is it always effective? What happens in case of dent? I think dent in the character. So when is it not effective? So Rajat Gupta, there would be an example. Why to persuade, need in contemporary times. फिर पिस्टल अप्रोच लगाया यहाँ पे, फिर सेट एग्जाम्पल, लिव बाय एग्जाम्पल। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Okay, that the essay goes like this. So in 1917 when Mahatma Gandhi entered into the political scene of India's struggle for freedom, he asked the farmers of Champaran district of present Bihar to defy the orders of Indian indigo planters. The poor farmers cooperated with Gandhi. It marked the first civil disobedience movement in India. फिर यहाँ पे कमेंट है, given anecdote and example covers the essence of the essay. Okay. फिर Gandhi's arrival made the freedom struggle a mass movement which included farmers, women who uh, who were hitherto within the four walls of home. They voluntarily participated. Where women's participation was one of the most significant aspect of Gandhi-led movement. अच्छा, एक बात मुझे आप सब बताइए कि यहीं पे मैं कमेंट्स पढूं या फिर वी कैन डू इट इन द लास्ट सेक्शन, लास्ट में करें, या अभी जो मैं कर रहा हूँ इट इज गुड? प्लीज समवन टेल दिस। सही है। सर लास्ट पे कीजिए, फिर एक स्ट्रीमलाइन बन जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा ऐसे सर, मतलब ब्रेक हो रहा है सर ऐसे। अच्छा ओके ठीक है, we'll do it in the later part. So in the third paragraph, it was Gandhi's conviction and faith in people with his moral integrity which built the trust in people. It was his live by example attitude that made people ready to give up comfort and fight for the nation. Therefore, we can say character is an effective means of persuasion, and that is the basis of today's advertisement industry. For example, people tend to buy the products endorsed by the celebrity they like. So let us see what persuasion is. Persuading someone is to make someone act the way one desires without using forceful means. That is, in persuasion, the other person believes that it's in his or her own interest. For example, a cigarette manufacturing company would donate a large amount of money to CSR fund to persuade the society into believing that it's doing a social work. So इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग से मतलब शी इज मेकिंग द एग्जामिनर टॉक टू द कॉपी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे शेक्सपियर का जब कोई प्ले चलता था तो उसमें शेक्सपियर यूज्ड टू गिव कमेंट्री, वही सेम सीन। परसुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम कोercion where someone's forced to agree with one. For example, under Motor Vehicles Act, the government imposes fine for not wearing helmet.
That's a coercive means to regulate people's behavior. A person can be persuaded when he or she develops a trust with the person trying to persuade him or her. In order to develop this trust, our character plays an important role. It is the component which represents predictability, and therefore the person can make clear decisions. अच्छा decision से link करा. Therefore, someone's character is symbolical of his or her ability to deliver their promises. For example, in international politics, when India proposes an agenda to fight terrorism, for example, CCIT, other members nations are likely to understand the genuine concern of India, which wouldn't be the case with Pakistan or Iran. A strong character of honesty restores people's faith. When the former Election Commission of India, TN Session, stood to fight against electoral malpractices, which was happening in MP, it restored the faith of people in the institution of ECI. Today, India's successful election as the largest democracy is a testimony to people's faith in the ECI. It was TN Session's integrity and grit that made election fair and free. So good examples of bureaucrats quoted in copy are more appreciated. Today, India has made significant strides in the field of information technology and service industry. It was Rajiv Gandhi who believed in technology-led development and his strong advocacy for science-led development through the ICT revolution. India today is aiming to become a digital India. When Johnson & Johnson CEO Jay Burke decided to recall a batch of tablets just because he found a few samples defective, it developed a bubble of trust between his company and the customers. Today, it remains as one of the most successful companies in the pharmaceutical industry. While a character of honesty, integrity, and selflessness is a source of trust, the opposite is also true. That is, if a person shows traits that dents trust, it is an effective means for getting rejected as well. For example, nobody wants to go visit a dentist who has yellow teeth. And sometimes a small dent in one's character lead to lifelong loss of faith and distrust. I think this could be trust. For example, the infamous case of Rajat Gupta made a dent in Indian American business community. ये case कोई बताना, what is this? Sometimes, due to really strong persuasive character, people may get to be easily manipulated. For example, in politics, we witness the phenomenon of cult personality, and the people are already believing the propaganda. Therefore, it leads to a situation of blind faith without rational thinking. We can see the example of such manipulation in history. During the early 20th century, when Adolf Hitler rose to power, people hoped that he would revive the German economy, which was under huge strain due to Treaty of Versailles and economic Great Depression. However, his aura and charm as a strong leader manipulated people into propaganda of racial superiority of Germans. It costed the lives of millions Jews in Holocaust because he could effectively and easily persuade people. In the contemporary times, we see several incidents of people with strong personality easily persuading gullible people into acts of commission and omission. The easy radicalization of youth into Islamic fundamentalist doctrine is also an example of other side of effective manipulation. In the movie Blood Diamond, set in Western Africa, nation of Sierra Leone, it shows how young children are easily persuaded to take up arms and become militants in the name of fighting for freedom. On the other hand, the real intent was to gain profit for the mafia leader who was engaging in illegal diamond trade. Therefore, the uninformed and innocent minds became easily target for manipulation. While manipulation is used in a negative connotation, persuasion is a good I think this is good twin brother of manipulation. Okay, good line. Persuasion is a good twin brother of manipulation. Thus, we can say that a strong character builds the bridge between the people and the character.
I think this is person. Unlike manipulation in persuasion, the person leads by example, shows the path to people, like Gandhi, who wore hand-woven dhoti made of khadi to encourage people to promote indigenous industries. A leader of strong character sets example. They walk the talk, thus making them an effective leader. Therefore, in our day-to-day life, if one has to mold behavior of children or one wants to solve an issue, one must show the character of integrity oneself first. Because hypocrisy leads to breaking of trust. It leads to an unstable social relationship. As the Gandhi's proverb says, therefore, be the change you want to see in this world. So this was her essay. Now, there are some comments to it. I am reading them also. देव सर स्ट्रक्चर और कमेंट साथ में पढ़ा, मतलब जब अपन पहले क्वेश्चन में करा था ना कि हम वी वर गोइंग थ्रू स्ट्रक्चर, तो वैसे स्ट्रक्चर भी बताते जाओ एंड कमेंट्स भी पढ़ लेंगे, तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, समराइज हो जाएगा। हाँ, तो स्टार्टिंग में शी डिड विद हिस्टोरिकल एग्जांपल की चंपारण इंसिडेंट। तो यहाँ पे लिखते हैं कि गिवन एनेक्डोट एंड एग्जांपल्स कवर्स द एसेंस ऑफ द एसे। अच्छा लगा एग्जामिनर को। फिर इंक्लूडेड फार्मर्स कॉज गांधीज अराइवल। अच्छा, ये ऐसे जो टॉपिक है, दिस इज मोस्टली रिवॉल्विंग अराउंड परसुएशन तो एंड कैरेक्टर, टू मेन कीवर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे गोज अराउंड इट। फिर इन पैरा नंबर सेकंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर गांधीज कन्विक्शन एंड फेथ इन पीपल एंड हिज मॉरल इंटेग्रिटी टू लिव बाय एग्जांपल, इसकी बात कर रहे हैं थर्ड पैराग्राफ में। फिर टुडेज एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, so she gave an example of today's advertisement industry जिसको एग्जाम एवेल्यूएटर एक इनोवेटिव पॉइंट बोल रहा है। फिर जैसे अच्छा, मेन थिंग इनके ऐसे में वाज एग्जांपल्स वेरी गुड। जैसे यहाँ पे एक इशू बता रहे हैं कि परसुएशन से नेगेटिव भी परसुएट कर सकते हैं, आप बता भी सकते हैं। जैसे सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वुड डोनेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू CSR टू फंड to persuade the society into believing that it's doing a social work। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है not my cigarette manufacturing company but companies in general। अच्छा, तो कमेंट आ रहा है नॉट ओनली सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बट कंपनीज इन जनरल persuade negatively also। so this is what the evaluator is saying। फिर फिफ्थ पैराग्राफ में persuasion is different from coercion। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट में आपका चालान कटेगा। तो गुड एनालिसिस डिफरेंस बिटवीन परसुएशन एंड कोएर्जन वो इज एक्सप्लेनेशन, गुड एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल। फिर आगे कैरेक्टर का रोल परसुएशन में, तो यहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टेबिलिटी। फिर पैरा नंबर 8 में कंट्रीज की स्टेट की बात कर रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल प्रोमिसेस या प्रोमिसेस जो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम कर रहे हैं कि टेररिज्म को फाइट करेंगे, तो दिस इज आल्सो वेरी गुड एग्जांपल। तो बेसिकली इनके ऐसे में एग्जांपल्स बहुत बढ़िया दे रखे हैं, गुड नंबर ऑफ एग्जांपल्स। फिर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ ऑनेस्टी रिस्टोर्स पीपल्स फेथ, जैसे TN सेशन मैंने वहां पे भी बताया था कि सेकंड हम लोग कौन से पेज नंबर पे है अभी? वी आर ऑन पेज नंबर 21 अकॉर्डिंग टू PDF। नहीं, वो नहीं रे, ऐसे का पेज नंबर। जैसे पहले में महात्मा गांधी पहले 2 पेजेस में उन्होंने एग्जाम्पल वगैरह देके एक एंकर बनाया है, एक इंट्रोडक्शन दिया है। आई थिंक उनका इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है, तो 2 पेजेस का इंट्रोडक्शन हो गया ऑलमोस्ट। एंड देन टुडे एज बताया, एंड देन व्हाट परसुएशन इज एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कोवर्जन, एंड देन कैरेक्टर पे आया ना। एंड देन वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से डायमेंशन स्टार्ट कर रहे हो अलग अलग। तो अगर ऐसे को ब्रेक डाउन करना हो ना, तो 2 पेजेस का उन्होंने ये बना दिया, इंट्रो बना दिया। फिर उसके बाद में 1.5 पेज तक उन्होंने डिफाइन कर दिया परसुएशन क्या है, कैरेक्टर क्या है, डिफरेंस क्या है, वगैरह वगैरह, है ना। देन शी स्टार्टिंग विद डायमेंशंस। इसमें पहला है इंटरनेशनल। ठीक है, कंटिन्यू।
मैं बताऊँ क्या? हेलो। हाँ हाँ, हाँ, तो आगे आप है बताना नेक्स्ट, चाह रहे हैं कि उन्होंने बता सबसे, दीजिए। ठीक है ठीक है, हाँ, सबसे पहले उन्होंने फिर इंटरनेशनल डायमेंशन बताया, इंडिया का एग्जांपल और पाकिस्तान ईरान से काउंटर कर दिया, हाउ डिफरेंट इट इज परसुएशन करने के लिए। फिर नेक्स्ट पैरा में टीएन सेशन का बताया, इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में उन्होंने कैसे फेथ रिस्टोर किया पीपल का, इंटीग्रिटी वगैरह, मतलब वो सब दिखाया कि हाउ इट वाज ऑनेस्टी इंटीग्रिटी यूज्ड इन दिस केस। फिर जैसे उन्होंने नेक्स्ट पैरा में आईटी का रिवॉल्यूशन बताया जो राजीव गांधी जी ने लाया था, वाई बिकॉज ही हैड इमेंस बिलीफ एंड फेथ इन साइंस आईसीटी टेक्नोलॉजी, उसी के वजह से वो सब कुछ हो पाया। तो वही मतलब दिखाना चाह रहे हैं कि हाउ कैरेक्टर उस बंदे का इसमें इन्फ्लुएंस हो रहा है, परसुएशन आ रहा है इंडिया को या लोगों को इंडियन। इसमें कमेंट लिखा है, वेरी गुड एग्जाम्पल टू शो पावर ऑफ कैरेक्टर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेवल एग्जाम्पल। तो टीएन सेशन के लिए बोला ये। फिर गुड पॉलिसी लेवल एग्जाम्पल, एक था गवर्नेंस लेवल एंड एक है पॉलिसी लेवल एग्जाम्पल, ठीक है। फिर अपन देखेंगे आगे कि एक कॉर्पोरेट का एग्जाम्पल आ गया, जॉनसन एंड जॉनसन सीईओ जिन्होंने रिकॉल कर लिए बैच ऑफ प्रोडक्ट्स, तो कैरेक्टर अच्छा है इसलिए रिकॉल किया उन्होंने, ये पॉजिटिव एग्जाम्पल बोल सकते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे कैरेक्टर ऑफ ऑनेस्टी इंटीग्रिटी सेल्फलेसनेस एंड ट्रस्ट। फिर एक येलो टीथ का एग्जाम्पल दिया है कि अगर डेंटिस्ट अगर येलो टीथ है तो उनके उसके पास लोग जाएंगे नहीं ज्यादा। फिर रजत गुप्ता का एग्जाम्पल हमें पता नहीं था, किसी को पता है क्या क्या है? इनफेमस। इनसाइडर ट्रेडिंग का था सर ये कुछ, इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए बुक हुए थे। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यही दिखाना चाह रहे हैं कि रजत, और कुछ है कि इनके बारे में कुछ पता हो एक्स्ट्रा? और इंडेक्स तो नहीं पता, इतना इनसाइडर ट्रेडिंग का केस था ये, ठीक है। और ठीक है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए एक्यूज हुए थे, बहुत डीप में नहीं पता। ठीक है, इतना आई थिंक बहुत है ना। ठीक है, तो येलो टीथ का डेंटिस्ट एग्जाम्पल हो गया, रजत गुप्ता का ये हो गया, ऑल राइट। और ऊपर जो कमेंट्स एक बार देखते हैं, गुड एग्जाम्पल फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर बोला है उन्होंने वहाँ पे। फिर यू कैन इंक्लूड अदर डायमेंशन एज वेल बोला है इन्होंने, जो भी एग्जामिनर है। देन एनवायरमेंटल बोल सकते हैं, जैसे आईपीसीसी, ग्रेटा थनबर्ग का लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी बोल सकते हैं, मैरी कॉम, कल्पना चावला, किरण बेदी, ठीक है। येलो टीथ का देखा, ये गुप्ता देखा। आप कंटिन्यू कर लो आप, जसदेव सर। ठीक है। फिर पूरे एसएमएस he has used multiple examples and they're very good। जैसे कि पर्सनालिटी कल्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि समटाइम्स ड्यू टू रियली स्ट्रॉन्ग पर्सुएसिव कैरेक्टर पीपल में गेट टू बी इजीली मैनिपुलेटेड, जैसे ब्लाइंड फेथ या पर्सनालिटी कल्ट। फिर उन्होंने एग्जांपल दिया इंटरनेशनली एडोल्फ हिटलर का, जैसे उन्होंने अपने इकोनॉमी को कर्टेन करने का प्रॉमिस किया बट ही डिडंट डिलीवर ऑन इट। एंड also due to his personality cult people also got manipulated easily। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं रेशियल सुपरियरिटी ऑफ जर्मन्स, इसके कारण मल्टीपल ज्यूज कॉस्ट देयर लाइफ। फिर इसमें कमेंट करा है इवेल्युएटर ने कि गुड एग्जांपल फ्रॉम ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट। ओके भाई। फिर ये तो रेडिकलाइजेशन बेसिकली की बात है। अगर आप देखोगे ना तो उन्होंने 6 पेजेस तक पॉजिटिव एग्जांपल दिए हैं, एक्सेप्ट फॉर दैट जो सिगरेट वाला एग्जांपल था ना, आई वुड हैव रिप्लेस दैट सिगरेट वाला एग्जांपल विद पॉजिटिव एग्जांपल, एनी अदर पॉजिटिव एग्जांपल। एंड जो सिगरेट वाला एग्जांपल था वो बाद में आएगा निगेटिव दिखाने के लिए कि हाउ अगर कैरेक्टर खराब है तो निगेटिव भी परिणाम आते हैं। जी सर, उसको बाद में लिख सकते थे हम इसके ठीक, अंदर। हाँ वो थोड़ा उल्टा होना चाहिए था, बट ठीक है, दैट्स फाइन, आगे चलो। आई थिंक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिगरेट एग्जांपल वाज करेक्ट, वो उस कॉन्टेक्स्ट में बैठ रहा था सही। ठीक है, ठीक है आगे ठीक है। देखते हैं। हाँ आगे देखते हैं उसको। फिर उन्होंने एक मूवी का भी एग्जांपल दिया, जैसे ब्लड डायमेंशन में कि मूवी के अंदर बताया है कि दे टुक अप आर्म्स, पीपल टुक अप आर्म, मतलब नेगेटिव कनोटेशन बता रहे हैं परसुएशन का, गलतली इजीली मैनिपुलेशन हो गया। फिर ये बता रहे हैं देयरफॉर द अनइन्फॉर्म्ड एंड इनोसेंट माइंड्स बिकम इजी टारगेट ऑफ मैनिपुलेशन।
ये बता रहे हैं परसुएशन इज द गुड ट्विन ब्रदर ऑफ मैनिपुलेशन, कि कैसे गलत अगर मीन्स, गलत अगर एंड्स हो तो उसके थ्रू परसुएशन कैन बिकम इनटू मैनिपुलेशन। तो इसको यहाँ पे टर्म करें, परसुएशन इज द गुड ट्विन ब्रदर ऑफ मैनिपुलेशन। फिर दस वी कैन से, वो ऐसे के टॉपिक से लिंक कर रहे हैं कि says that the strong character builds the strong bridge between the people and the person, therefore leads by example। फिर गांधी का वापस से यहाँ पे एग्जांपल डाल रहे हैं कि he wore khadi to connect with people and to encourage people to promote indigenous industries, so he was the man who walked the talk की बात कर रहे हैं। फिर therefore in our day to day life, in our one has to be mold behaviors accordingly। फिर characters of integrity, oneself first, ये जो मेन टॉपिक्स हैं। फिर hypocrisy leads to breaking of trust, it leads to an unstable social relationship। फिर गांधी का एग्जांपल कि be the change you want to see in this world। फिर यहाँ पे evaluator comment करे कि your conclusion is optimistic, futuristic and persuasive as well। Here he says it to be very good। I think पूरे ऐसे में there are multiple examples and they are used very effectively। काफी बढ़िया से एग्जाम्पल का यूज किया है। The use of examples are very good। पहले positives, पहले negatives, फिर positives, दोनों डायमेंशन बताएं, और गांधी का एक्सेसिव यूज करा है यहाँ पे। सो ही इज लेजेंड टू अस, तो गांधी का यूज भी बढ़िया से करा है। आई थिंक दिस इज अ गुड मतलब यूज ऑफ एग्जाम्पल। और एक और Please चीज add on नोट to करने it। वाली है, शी स्टार्टेड विद गांधी इन द इंट्रो एंड अगेन एंडेड विद गांधी इन द कंक्लूजन। दिस शोज द क्या बोलते हैं ना, कोहेसिवनेस ऑफ द एसे। जी सर। अच्छा, एक और मतलब ओवरऑल जनरल टिप है ऐसे के लिए, जो मुझे यार लास्ट ईयर भी थोड़ा सा मतलब ऐसा लगने लगा है यार, ऐसे क्या होता है ना, बहुत लंबा होता है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 10 to 12 पेजेस लॉन्ग। So considering that, if it is prudent to use the same words that are given the essay statement in the essay itself, तो इसको कैसा करना है ना, जैसे क्वेश्चन में लिखा है कैरेक्टर मे ऑलमोस्ट बी कॉल्ड द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ परसुएशन। तो जहां जहां पे हम पॉजिटिव एग्जांपल दे रहे हैं ना, वहां पे 2-3 जगह पे सेम स्टेटमेंट लिख दो, सेम की सो दिस इज हाउ कैरेक्टर कैन इन्फ्लुएंस द परसुएशन इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। ऐसा 2-3 बार लिखो ऐसे, एंड फिर लिखो कि however like as we saw before, जो निगेटिव एग्जांपल देंगे, हम लिखेंगे कि कैरेक्टर से परसुएट तो होता है, बट दो इफेक्टिवनेस पॉजिटिव है कि निगेटिव कह नहीं सकते। ऐसा कुछ मतलब इफ यू ट्राई टू यूज these lines itself, these keywords itself in as many types as बॉडी में, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा वो। जी सर, इससे एक और फायदा भी होता है, आप ना टॉपिक से स्टिक हुए रहते हो ना, भागते नहीं कहीं और। ठीक है, एंड हाँ, अगर ये आप अगर फायदा आप होता है जब। जी सर। इसका एक और मतलब जो आप फायदा बताना, उसी का एडवांस बताता हूँ मैं। इसका फायदा तुम्हें हो या नहीं हो, एटलीस्ट एग्जामिनर को ये लगता है कि यार ये तो बंदा स्टिकिंग टू टॉपिक हो रहा है। मतलब इवन दो यू हैव गॉन समवेयर, यू हैव गॉन हेवायर, बट स्टिल द एग्जामिनर विल साइकोलॉजिकली थिंक यार हाँ इसने टॉपिक पे ही एड्रेस कर रहा है ऐसा। हाँ। सर बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो अगर एग्जामिनर को कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा है अपना पॉइंट, और अपन आखिरी में इंक्लूड इसी चीज से करें, तो वो सोचेगा हाँ सही तो लिखा होगा। करेक्ट करेक्ट, ये मतलब वी आर प्लेइंग विद द ब्रेन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल थोड़ा सा हाँ खेल रहे हैं, बस बढ़िया है वो। हाँ। अच्छा, एक और चीज, इसमें कहीं पे सोक्रेटिस नहीं आया यार। सोक्रेटिस तो चाहिए था, एज अ PSIR स्टूडेंट इट हैज टू कम। अच्छा, फ्रॉम हर एसेज आई एम थिंकिंग शी इज अ PSIR स्टूडेंट। ही इंडीड इज अ PSIR स्टूडेंट, मतलब आई नो हर वेल, तो थोड़ा सा बात हुआ था हमारा, काफी अच्छा इंटरेस्ट है उनके। तो मतलब सोक्रेटिस को आना चाहिए था यहाँ पे, बस एक लग रहा है मेरे को। वर्चू इथिक्स की भी बातें आनी चाहिए थोड़ी सी। इथिकल जो है ना, टीलियोलॉजिकल या जो डिओन्टोलॉजिकल नहीं है, कांत वाला, इमैनुअल कांत वाला, थोड़ा सा डालना चाहिए था वो कहीं ना कहीं। हाँ, और हाँ मुझे सर, इसमें लगता है कुछ इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी इसमें डालना चाहिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में जो जैसे अंबेडकर का एग्जांपल हो सकता है, कैरेक्टर से लोगों को परसुएट करा, दलित समाज को, ही टुक हिम फॉरवर्ड। ऐसे इंडियन नेशनल मूवमेंट से एग्जांपल डालने चाहिए थे। बिल्कुल। और इसके अंदर देखो, एक तो उन्होंने लिखा ही है कि जेंडर का डायमेंशन थोड़ा सा मिसिंग रहा, राइट। उसका डाल सकते थे हम कि कैसे जेंडर इक्वलिटी को लाने के लिए, पेट्रियार्की को हटाने के लिए हम यूज कर सकते हैं परसुएशन का, राइट।
और इसके अलावा एक एनवायरमेंटल डायमेंशन डाल सकते थे हम, चाहे अब COP26 हो, क्लाइमेट इमिशंस बढ़ रहे हैं, तो वहां पे भी परसुएशन का यूज रहेगा। वो एक एंगल आ सकता था। So what are our key takeaways from नहीं, both अभी of these अभी essays? डायमेंशन डिस्कस कर लो थोड़े बहुत। और जैसे परसुएशन का एग्जांपल अगर थोड़ा सा अच्छा, हाँ, ठीक। निगेटिव वे में देना हो, तो वी कैन ऑल्सो, जो फार्म लॉस का जो फियास्को हुआ, तो वी कैन से दैट्स अ फेलियर ऑफ परसुएशन ओनली ना। इंटेंशन तो काफी अच्छा था, लॉस भी बढ़िया थे बहुत सारे, बट इट्स ऑल फेल्ड बिकॉज ऑफ परसुएशन। बट देन अगेन आई एम नॉट श्योर इफ वी शुड राइट इट और नॉट। बेटर अवॉइडेड लग रहा है ये चीज सर तो। आप जो बोल रहे हैं ना वो सही तो है, पर लिखना चाहिए कि नहीं ये डिबेटेबल है। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल वो सही है, इट वाज फेलियर ऑफ परसुएशन आल्सो, क्योंकि हाँ सर वो उसके इंटेंशन गवर्नमेंट ने सही थे। उसको बट हटा लिए ना, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट खुद कहीं ही ना कहीं, उसको हटा लिए। हाँ, तो इसलिए सर इसीलिए वो अब लिखना इसको चाहिए कि नहीं नहीं। वो डिबेटेबल है। एंड इनफैक्ट पता है, मतलब आई रिमेम्बर मैंने स्टेटमेंट देखे थे मिनिस्टर्स के वगैरह, तो उन्होंने भी यही एडमिट करा था इनडायरेक्टली, हिंदी में मैंने सुना था कि मतलब हम किसानों को समझा नहीं पाए, ऐसा कुछ मैंने सुना था बहुत बार। हाँ, तोमर जो है उन्होंने भी यही बोला था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ठीक है, बट देन अगेन वही बात है ना, द वे वी राइट विल मैटर अ लॉट मोर। वी शुड नॉट बी हर्टिंग एनीबडी। जो भी अगर एग्जामिनर सपोज राइट विंग वाले है, तो वी शुड नॉट बी हर्टिंग इन सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। तो बेटर अवॉइडेड, या फिर इफ यू वांट टू राइट इट टैक्टफुली। ठीक है, अच्छा, क्योंकि वी कैन एग्जाम्पल की राइट अ कमी नहीं है ना इस नेगेटिव क्वेश्चन में। एग्जांपल जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का था, यहाँ पे एक एग्जांपल। तो Pulela Gopichand, I don't remember the year. So when he won the Asian Cups or the England Open tournament, he was asked to have advertisement by Coca-Cola or some soft drink company. So he refused it. He says that if I'll promote soft drinks, then people or youngsters would go for soft drink as a supplement for doing good badminton. So this is a good example that he that he opted out so that कि कोई गलत परसुएशन नहीं हो जाए लोगों को. दिस इज अ गुड एग्जांपल. राइट। अगर परसुएशन का निगेटिव एग्जांपल देना है, तो जो रिसेंटली जैसे सहारा स्कैम हुआ था, तो वैसे स्कैम जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको यार, म्यूचुअल फंड स्कैम वगैरह, इंश्योरेंस स्कैम वगैरह होता है ना, फाइनेंशियल स्कैम्स, यू कैन गिव द रिसेंट एग्जांपल्स, बहुत सारे होते रहते हैं वो, कि हाउ निगेटिव परसुएशन करा जाता है। चिट फंड एंड बोगस कंपनीज. अच्छा, एक और गांधी जी का मुझे याद आ रहा है, व्हेन सम चाइल्ड वेंट टू मीट हिम, एंड उसकी मम्मी ने उसको, गांधी जी को बोला कि ये बंदा बहुत चॉकलेट खाता है, बहुत ज्यादा शुगर खाता है, तो गांधी जी आस्क्ड हिम टू कम बैक अगेन आफ्टर 2 days और समथिंग। पता है ना स्टोरी? हाँ, आई तो रिमेम्बर दिस दो तीन दिन एग्जांपल. के बाद 2-3 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद, शी कम्स बैक अगेन एंड देन शी आस्क्ड कि आपने उस दिन ऐसा क्यों बोला? तो उन्होंने बोला कि मतलब बिफोर टेलिंग द चाइल्ड कि आप शुगर मत खाओ, इवन आई माई सेल्फ शुड स्टॉप माई अर्जिंग के क्राइविंग्स फॉर शुगर, तो समथिंग लाइक दैट। हाँ हाँ सर, ठीक है, आई सही थिंक यार बात. एक टॉपिक बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ही ज़्यादा कुछ लिख सकते हैं इसमें, बस सबको कोहेरेंट वे में लिखना एंड डायमेंशंस ओपन अप करना बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। ठीक, वी कैन मूव टू नेक्स्ट। अच्छा, while discussing both of these two essay, what are our major takeaways? जैसे हम ग्रुप में हमने स्टार्ट करा था कि हमें क्या पोस्ट करना है और क्या चीज पे ध्यान देना है. So what are key takeaways from these two essays? यार मैं तो बोलता हूँ मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे यही है कि डोंट स्टडी, डोंट रीड मच, सिर्फ टॉपर कॉपी पढ़ लो, उसको समझ लो, अंडरस्टैंड द फ्लो, जो भी एग्जाम्पल्स उन्होंने कोट करे उसको समझ लो, रट लो, यूज देम प्रॉपरली। जी सर, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना इसमें, जो ले सकते हैं हम ऐसे के अंदर इनफैक्ट। कोर टेक अवे है कि इंट्रो एंड कंक्लूजन को लिंक करो। एक और कंक्लूजन है कि जो बुक्स के नाम है उसको यूज करो इफेक्टिवली,
Don't hesitate from using book name and the ideas. And एक और कंक्लूजन है कि यार राइट विथ योर हार्ट नॉट विथ योर ब्रेन, मीनिंग फ्लो दिखना चाहिए, पूरा ऐसे बहना चाहिए। और बताओ बाकी लोग कंक्लूजन क्या थे आपके? आई थिंक मुझे सबसे अच्छी बात इनकी लगी दोनों एसेज में ये लगी कि इन्होंने करंट अफेयर्स में या फिर जो अभी इश्यूज चल रहे हैं उनको टॉपिक से रिलेट करा। जो अभी फार्म लॉस चल रहे हैं वो फार्मर्स की डेस्टिनी ऑफ द नेशन में कैसे आएगा उन्होंने वहां क्लिक करा। उन्होंने अभी एडवर्टाइजमेंट जो हो रहे हैं गलत जो चल रहे हैं उसको परसुएशन से कनेक्ट करा। दिस इज द वेरी बेस्ट एग्जांपल, मतलब मेरे लिए ये टेक अवे रहा, ये अच्छा रहा। दूसरा ये कि जो स्टार्ट जिस चीज से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे पेलियोलिथिक से स्टार्ट करा और पेलियोलिथिक पे एंड करा, दिस इज वेरी गुड। तो ये दो टेक अवे, दीज आर द टू टेक अवेज आई एम टेकिंग आउट। ठीक है, और किसी को कुछ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज टेल दिस। एंड एक और टेक अवे मेरा ये है ना कि कंटेंट से ज्यादा मैटर कर रहा है तुम्हारा फ्लो कैसा है, तुम्हारा कोहेरेंस कैसा है, हाउ लॉजिकली अरेंज द थिंग्स आर, दैट मैटर्स अ लॉट मोर। कई बार क्या होता है जैसे सर प्रीवियस ऐसे में जैसे बोलो बोलो। सर मैंने एक ग्रुप में एक पोस्ट किया है, एक टॉपर का आंसर है, वो भाई ऐसे है, वो एक बार वो भी देख लो। वो एक्चुअली एक एग्जांपल दे करके कैसे कैसे वो का भी फ्लो बहुत अच्छा है। अच्छा पहले इनके 149 आए हुए है, वो टॉपर कौन है आपको पता है क्या? क्योंकि इनका एक और कॉपी है, इसमें एक और ऐसे है ड्यूटीज एंड राइट्स के ऊपर, वो पॉलिटिक्स वाला ऐसे है। अपन ने एक फार्मर का देख लिया, दूसरा कौन सा देखा अपन ने? ये इथिक्स एक वाला। परसुएशन का देखा, कैरेक्टर परसुएशन, एक फार्मर्स। हाँ, और एक और अभी मतलब जो मैंने ऑलरेडी देख के रखा था वो ये था, ये क्या था यार वो, एक सेकंड, हाँ, राइट्स दैट डू नॉट फ्लो फ्रॉम ड्यूटी वेल परफॉर्म्ड आर नॉट वर्थ हैविंग। तो राइट्स एंड ड्यूटीज वाला है वो पॉलिटिक्स वाला। आप जो बोल रहे हो विजय सर वो कौन सा है, किसका है यार? तो उसके उनके कितने नंबर थे या फिर क्या टॉपिक है? मुझे पता नहीं है, बट उसका एक बार आप खोल करके देख लो, क्योंकि वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगा। वो जल्दी जल्दी में मैंने बहुतों का डाउनलोड किया था और उसमें कहीं पे मेरे को नाम भी मतलब पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा, आप बताओ उसमें कौन सा टॉपिक है। जो अभी आपने पोस्ट किया था, जो ऐसे वाला जो पोस्ट किया था जिसमें वो फॉर्मेट बता रहे थे, उसी के अंदर मैंने कमेंट किया है, उसमें आप खोलना बोला। फिर उसका टॉपिक का नाम तो बोल दो एक बार आप बस, या फिर ओपन कर हाँ, लो। वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक का नाम है ओके, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लानेट इज द बिलीफ दैट समवन एल्स विल सेव इट। मिला क्या? हाँ हाँ, ओपन हो रहा है बैकग्राउंड में। हाँ हाँ, एक बार रिसेंट ड्यूटीज वाला कर लेते, फिर नेक्स्ट वो करते चाहिए तो। ठीक है ठीक है। अच्छा एक सेकंड यार, ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है। मैं रिकॉर्डिंग दूसरा चालू कर दूं क्या, स्टॉप करके? हाँ हाँ ठीक है।